Rightly quoted by Albert Einstein, peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. A very warm morning to one and all present here. I, Vaishnavi Sinha, with my co-compare Mrigendra Raj, welcome you all to this noble celebration of International Peace Day. Rightly quoted, a daily, a weekly, a monthly process, gradually changing opinions, slowly eroding barriers, and quietly building new structures, is peace. Peace, a small word but with a deep meaning. Various conflicts occurring in the world, economic recessions, de-escalating employability crisis, but then too, people are trying to maintain peace and harmony all around us. Why? Just because every person, every nation can have an enraptured lifestyle without any complication. From social justice to arts, health to environment, education to sports, there are various ways to form peace. Actually, what a kid observes at youth is what he performs at adult. So the concept of maintaining peace and harmony should be taught since the age of schooling. To have respect for diversity, to care for nature, to withstand against natural calamities, and to fight against all the difficulties so no ameliorations are required later on. As decided by the UN General Assembly, every year 21st September is celebrated as the International Peace Day. Every year, the United Nations calls on everyone to observe 24 hours of non-violence and ceasefire. This year, the theme of the International Peace Day is Shaping Peace Together by spreading compassion, kindness, hope during this phase of pandemic. Stand against attempts to use this virus to promote discrimination or hatred. My dear friends, these are not normal times due to this pandemic, and every one of us have at least a moral obligation to toil towards world peace. This year, as we struggle to defeat COVID-19, this International Day of Peace will be dedicated to collect ideas to face this storm, heal our planet, and change it for our better. The whole world is in immense turmoil. It has a direct effect on peace, development, security and health of every nation. But rather, to get panic from it, it should be understood that we are not each other's enemy. Rather, our most common enemy is this timeless virus against which we need to fight. In order to spread awareness and tell importance about the day, our school organizes many activities related to theme peace. These activities help us to develop a mindset of we and us instead of me and mine. To begin with, our friends are going to present a melodious song on the theme peace, whose lyrics are सबकी एक है धरती और सबका एक गगन. सबकी एक है धरती और सबका एक गगन, फिर काहे को फिरता कोई गम में मगन, कोई कम में मगन. सब धर्मों का सभी जगह हो सुंदर एक भवन, जिसके प्रांगण में हो एकता शांति और अमन. हृदय एक हो सबकी भावना, मिलके करे सब प्रार्थना तब आएगी सद्भावना. मिलके करे सब प्रार्थना तब आएगी सद्भावना. ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे.
Indeed, a very lovely song presented by our friends. Peace is not something that you wish for, it is something that you create, something that you are, something that you do, and something that you give away. With these words, I would like to invite a renowned psychologist of Faizabad, Ms. Priyanka Garg, to apprise us with the topic, how can one get inner peace? I am Dr. Priyanka, for clinical psychologist and rehabilitation psychologist in फैज़ाबाद। आज हम बात करते हैं इनर पीस की, कि जो आज के टाइम में कोविड-19 में जो स्ट्रेस आप लोगों को हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, अपने आप को आप कैसे मैनेज करें, आप अपने सिचुएशंस को या घर पे किस तरह से आपको रहना है। ये आपको जो स्ट्रेस उस समय हो रहा है कि आपको लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी सब कुछ एक तरह से आपको जो एक लो फील हो रहा है, उसको आप अपने आप को कैसे एक पीसली आप अपने आप को कर सकते हो। सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को समझो कि आपको आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, रीज़न क्या है। जब आप खुद से डरोगे तो वो ऐसे ही परेशान होगे, तो पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना होता है। तो इसलिए आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं या घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को एक शेड्यूल बनाओ, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। आप जितना परेशान होते हो, चीज़ें आपको उतनी परेशान करती हैं, तो चीज़ों से परेशान नहीं होना है, चीज़ों को सामना करना है। तो आप जो एक पीस इन्वायरमेंट चाहते हो कि आपको शांति मिले, तो शांति के लिए पहले ज़रूरी है कि आप परेशानियों का सामना करो, ना कि परेशानियों से परेशान हो। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंट को, जो प्रॉब्लम है उसको चुपचाप देखो, समझो कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे। देन आप उसको समझो कि आखिर जो आप प्रॉब्लम को समझ रहे हो वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे हम एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन हमको प्रिपरेशन नहीं है। आप थोड़ा सा सोचो उसको, तो आपको स्ट्रेस अपने आप को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत कठिन काम नहीं है, जिसको आपको लगता है कि हाँ बहुत स्ट्रेस का काम है, बहुत ईजिली है, आप ईजिली कर सकते हो। उसके लिए एक मेडिटेशन सिंपली होता है कि आप डीप ब्रीथ करो और थोड़ा सा पोलाइटली अपनी ब्रीथ को काउंट करो, तो आप अपने आप को पीस कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने माइंड को पीस करना, कि आपको उसको कैसे कंट्रोल करना आता है। आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकते हो अगेंस्ट फॉर आपको अदर किसी की हेल्प के बिना। तो सबसे पहले है, कभी आप जल्दी में मत रहो। किसी परेशानी को समझना है तो उसको समझो, फिर उस पर रिएक्ट करो, क्योंकि जितना आप भागोगे चीज़ें उतनी भागती रहोगे, परेशान रहोगे। तो चीज़ों से भाग कर नहीं, चीज़ों को शांति से समझ के आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसको कर सकते हो। देन आप अपने डर को ख़त्म करो। डर को ख़त्म करने के लिए ही सबसे ज़रूरी है कि अपने पीस को, अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है। पीस के लिए सबसे ज़रूरी अपने फेयर को ख़त्म करना, और उसके संग आप अपनी एक बकेट लिस्ट बनाओ, जो आपको पता लगे कि आपको कहाँ पे खुशी मिल रही है, किस चीज़ में आपको हैप्पीनेस है। आपकी हैप्पीनेस ही आपकी मेन प्रायोरिटी है, क्योंकि आप सब चीज़ करोगे लेकिन हर चीज़ को आप भागोगे करोगे, लेकिन अपनी एक स्माइल है जो रियलिटी है उसको आप नहीं देख पाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी अपनी बकेट लिस्ट बनाओ कि आपकी विश लिस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपका शेड्यूल क्या है, आपकी डेली लाइफ में आपके एक गोल क्या है, जिसको आपको एक हैप्पीनेस खुद के लिए मिले। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपनी एक बकेट लिस्ट बनाओ, जिसमें आपको अपनी इन सब चीज़ों को कवर किया जा सकता है। आप उस पर अपने चीज़ों को अकॉर्डिंग अपने काम कर सकते हो, जो आपको एक पीस इन्वायरमेंट को दे सके। जो इस कोविड-19 में आपको लगता था कि पहले आप नहीं कर सकते थे, अब करने का वक्त है। आप अभी भी कर सकते हो, इन केस आप जो चाहो। आप जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उस समय वो चीज़ ड्रॉप कर दो कि हाँ अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो अब मुझे अपने नेक्स्ट जो हमको हैप्पीनेस दे, जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए। तब आपको एक जो फ्रेश फील होगा, आप अपनी एक पीसली इन्वायरमेंट में आप रहोगे ना, वो एक खुशी आपको अच्छी आपको फील होगी, ना कि आप वो जो एक डर के कारण नहीं ड्रॉप हो जाएगा, मिस हो जाएगा, उसके लिए आप जो स्ट्रेस में रहोगे तो आप उसको कर नहीं पाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप इतने इस प्रॉब्लम को खुद समझो, करो कि कैसे करना है आपको। नहीं तो आप ऐसे परेशान रहोगे तो आपकी परेशानी आपके ऊपर हावी होने लगती है, तो ये आपका डर बन जाता है।
जितना आप डर से डरोगे, डर आपको उतना ही डराता है। तो डर से डरना नहीं है, डर को डराना है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप अपनी ब्रीथ को पे ध्यान दो कि आपकी ब्रीथ क्या है। आप टेक्निक्स आप कुछ भी यूज़ कर लो, जब तक आप अपनी ब्रीथ को नहीं समझ पाओगे कि आपकी ब्रीथ कैसी है, आप अपनी ब्रीथ पे कंसंट्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप नहीं समझ सकते कि आप माइंड रिलैक्स है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए सबसे ज़रूरी है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना। जब तक फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम कंट्रोल नहीं करते अपने आप को, तो हम अपने माइंड को पीसली हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने डर को ख़त्म करना, और डर को ख़त्म करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको अपनी ब्रीथ को, अपनी कॉन्सेंट्रेट को इस चीज़ पे यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को मेडिटेट कर पाते हो। नहीं तो आपको ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो दूसरों के व्यवहार को आप समझते हो ना कि हम इसका बिहेवियर चेंज कर दें, दूसरों को चेंज करने से अच्छा है कि आप खुद को चेंज करो। आप दूसरों की बुराई निकालते हो, उससे अच्छा अपनी खुद की बुराई देखो कि हाँ मैंने क्या गलती करी। जब आप खुद को समझ लेते हो तो दूसरा आपके बारे में क्या समझता है ये ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए खुद को समझना ज़रूरी है, ना कि दूसरों को समझना ज़रूरी है। और अगर आप सैड फील कर रहे हो या आपको लग रहा है कि नहीं इस नॉट हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, तो आप उस समय वो सोचो कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है, क्या करना चाहते हो। आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत इरिटेट हो रहे हो, तो आप उस समय अपने इरिटेशन को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढो कि क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहते हो आप। तभी आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लोगे ना, तब फिर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। खुद को समझना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। तो जब आपके अंदर की चीज़ें, आप अपने अंदर की चीज़ों को समझने लगते हो, अपने अंदर की चीज़ों को बनाते हो ना, तो फिर आप अपने आप को खुद ही पीस कर सकते हो। क्योंकि फिर आपको अदर चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप फिर अपनी स्टडी में, अपने करियर पे एक फुल कंसंट्रेट कर सकते हो कि इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना फिर कोई आपको, अगर घर में रहना है या अदर किसी ऐसी सिचुएशन में आएगा जहाँ पे हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने माइंड को पीस रखने के लिए खुद को समझना ज़रूरी है, खुद के डर को ख़त्म करना ज़रूरी है। डर नहीं ख़त्म होगा तो फिर हम ऐसे ही परेशान रहेंगे और ऐसे ही हमें दिक्कत होती रहेगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने एक खुद के बिहेवियर को समझना, ना कि दूसरे के बिहेवियर को समझना। तो खुद को बिहेवियर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है हम जो भी ब्रीथ लेते हैं उसको, अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं, तभी हम जानते हैं कि हमको क्या सही है। हम जितनी अपनी स्टडी बुक से समझते हैं उससे ज़्यादा हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट हमको जितना अच्छे से सिखाता है, हम उसी तरह हमारी ब्रीथ हमको सिखाती है कि हमको कितने अच्छे, हम अपने आप को कितना अच्छा बना सकते हैं। खुद को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद को समझना, और पीस को छोड़कर हम अदर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। अगर हमको अपनी पीस को छोड़कर अदर चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम वही स्ट्रेस और वही अपने इरिटेशन और उसी मैनेज को ही नहीं कर पाएंगे। तो अपनी पीस को ध्यान में रखना है, अपने एक शांति हम जो चाहते हैं माइंड की, तो माइंड को रिलैक्स करना है। तो उसके लिए फिजिकली अपने आप को हमको इमोशनली कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी ब्रीथ के अकॉर्डिंग, तभी हम अपनी इनर उसको पीस को समझते हैं। नहीं तो हम ऐसे ही परेशान रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचते हैं कि लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारी बुराई तब करते क्योंकि हम उस चीज़ को समझते हैं कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं। जब हम बुराई समझेंगे ही नहीं तो हमको लगेगा ही नहीं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, क्योंकि हमने ये अपने माइंड को मेंटल स्टेटस बना रखा है, तभी उस चीज़ को हमें वो परेशान करती हैं बातें। जो हमारे माइंड में टॉपिक्स, थॉट्स आते हैं तो उसके हमारे पॉजिटिव या निगेटिव, हम निगेटिव थॉट्स से भागते हैं कि हमको निगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है, बट हमको अपने उसी
पॉइंट्स को हमको अपने आप को पॉजिटिव में लेने के लिए हमें अपने निगेटिव थॉट्स से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि पहले निगेटिव को समझें, तभी हम पॉजिटिव को रिएक्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप अपनी लाइफ में ये सब ट्रिक्स को थोड़ा सा फॉलो करेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ शेड्यूल को चेंज कर सकें। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को थोड़ा सा समझो और अपने आप को चेंज करो, ठीक है, तब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। Children are ambassadors of peace and harmony. Now, the children of our institution are here with a program on communal harmony and solidarity with the theme of Every Child is a Peace Builder. Religious and spiritual communities of all beliefs across the world see Peace Day as a powerful opportunity to pray or meditate on peace, to build fellowship and greater interfaith respect, and to put faith into action in service to the local and global community. Your place of worship or you as an individual are welcome to join in this global expression of solidarity by observing Peace Day in whatever way most appropriate to your tradition. Peace is the highest religion. Peace is the glory of humanity. Fruits of understanding is compassion. Fruits of compassion is love. Fruits of love is peace. Lit a candle for peace, lit a candle for love, lit a candle for shine, all the way around the world. Lit a candle for me, lit a candle for you, that our wishes for World Peace Day will one day come true. Now I have some suitable slogans on World Peace Day. Use words, not weapons. Use words, not weapons. Peace is cheaper, war is costly. Peace is cheaper, war is costly. Let the peace of love flow in your life. Let the peace of nature flow in your life. Thank you. This day is envisioned to become a movement of global unity. It's up to each and everyone to make this a reality. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Sing peace around the world. Sing peace around the world. Sing
peace begins in our heart, grows in our mind, manifests through our will, and spread through our action. COVID-19 has confined us to our homes, but it has given wings to our imagination. Even in this time of pandemic, our institution has offered a great chance to all the students by organizing an activity on e-poster making on Peace Day. E-poster is an online flexible poster that combines several images, slideshow, text, data attachment into a single presentation. Now here are some e-posters made by the students of our school in the form of slideshow. पीस डे पर जो आपने पोस्टर्स बनाए हैं वो मैंने देखा, बहुत ही अच्छे बने। उसमें इतने अच्छे मैसेज आपने दिए हैं कि बेटा आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से अपने सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं। आपके पोस्टर्स के द्वारा सोसाइटी को बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। आप घर बैठ के भी हमारे सोसाइटी को गाइड कर रहे हैं और पीस डे के उपलक्ष्य में इतने अच्छे मैसेज आपने डाले हैं, पिक्चर्स डाली हैं। आर्ट बेटा एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने पेंटिंग के माध्यम से अच्छे मैसेज को समाज को अर्पित कर सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। आपने ये पीस डे के उपलक्ष्य में इतना अच्छा काम किया, समाज को मैसेज दिया। उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस होगा और आगे भी आप इस टाइप के काम करते रहेंगे। As we are leading the procession into the techno world, we are left behind with several pits which might obstruct our way. The two most vulnerable pits since Indian independence have been child labor and poverty, and leaders have been struggling to eradicate them from the society. Among these social reformers, the two renowned reformers who brought change in the Indian society are Kailash Satyarthi and Mother Teresa. Kailash Satyarthi was awarded with the Nobel Peace Prize in 2014 for his struggle against the suppression of children and young people and right to all children to education. Words are less to describe the selfless efforts made by Mother Teresa, a nun and a missionary who devoted her life to caring for sick and poor people. In 1979, she was also awarded with the Nobel Peace Prize for her work undertaken to overcome poverty and distress in the world. Saint Teresa of Calcutta, considered one of the greatest humanitarians of the 20th century, received the Nobel Peace Prize in 1979.
In 1946, Mother Teresa petitioned the Catholic Church to let her leave the convent to which she'd been assigned to work among the poor in the slums of Calcutta, a new congregation which became known as the Missionaries of Charity, just the beginning of her work among the poorest of the poor in India. At her death in 1997, there were more than 4,500 missionaries of charity and hundreds of missions in more than 100 countries. Mother Teresa wrote about her philosophy of charity. Quoting Matthew 25, she said, "Christ said, 'I was hungry, and you gave me food.' He was hungry not only for bread, but for the understanding of being loved, of being known." The woman known as Mother Teresa of Calcutta was born on August the 27th, 1910, in Macedonia. Becoming an Albanian Catholic nun, she would go on to found the Missionaries of Charity in India. Her work in poverty-stricken Calcutta made her one of the world's most famous people. Throughout her life, Mother Teresa received numerous awards for her work. Some examples are the Templeton Prize in 1973, the Nobel Peace Prize in 1979, and India's highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1980. She was presented with the US Presidential Medal of Freedom in 1985 and was made an honorary citizen of the United States in 1996. In October 1950, Teresa received Vatican permission to start her own order called the Missionaries of Charity. It began as a small order with 12 members in Calcutta. Today it has more than 4,000 nuns running orphanages, AIDS hospices and charity centres worldwide. By the early 1970s, Mother Teresa had become an international celebrity. During her lifetime, and even after her death, Mother Teresa was consistently found by Gallup polls to be the world's single most widely admired person, and in 1999 was ranked as the most admired person of the 20th century. Notably, Mother Teresa outpolled all other volunteered answers by a wide margin, and was in first place in all major demographic categories except the very young. Mother Teresa's legacy, years after her death, is acknowledged by those whose suffering is eased by it, something that can be gauged by a visit to Tender Heart Home for the Dying, founded by the nun in 1952. Many of the inmates at the leprosy homes earn a living by weaving saris for the Global Missionaries of Charity Order. At the home, dozens of dying patients, many picked up by the Order's sisters from the streets, lie on low beds in medical gowns as Mother Teresa's photo overlooks their spotless ward. The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for the struggle against suppression of young people and children. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Getting a greeting like this is all the reward Kailash Satyarthi needs for freeing these children from a life of slavery. He tries to give these kids the childhood they missed. Do you think these kids see you as a Nobel Peace Prize winner? No, I don't think they see me as friend or brother or something like father. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and I have felt their broken spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are born to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, if the children are deprived from their childhood in any part of the world cannot live in peace. The world cannot be human.
It's not often the two winners of the Nobel Peace Prize get together, but it happened yesterday when President Obama met Kailash Satyarthi. They were joined by 3 children who were rescued from child trafficking and forced marriage. You cannot live in isolation. All the problems and solutions are interconnected. And so the problem of child labor in any part of the world is your problem. Satyarthi organizes raids with local police, but sometimes employers are tipped off and waiting for him armed. But I have been attacked many times in my life. You had a gun to your head? Literally, here. This is dangerous work, freeing these kids. Somebody has to pay the cost for freedom. It does not come on plate. So if not me, then who else will do? Who will Nobel Prize? Who won the Nobel Prize, he asks. Their reply, all of us kids. It's good. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. A man risks his life to end slave labor in India. Safe haven and new beginnings on the mean streets of San Francisco. And a home for AIDS orphans in Zambia. Listen. Imagine how life will be. What is it that makes a person a hero? Is it the risk they take? Or the lives they change? There are people in the world today who are offering hope instead of despair. They are the new heroes. Those who think that slavery has been abolished, they are wrong. अभी सब लोग कोई डर रहा है? तुम लोग डर रहे हो? डरो नहीं. ये क्या बंदा है बेटा? My colleagues and I have freed over 80,000 children, but that is not enough. Rescue operations and raids are important, but one tiny part of the whole movement. I have one single mission of my life, that every child should be free to be a child. I have seen that change is possible. If you see any kind of abuse and exploitation of any child anywhere, break the silence. March with me. Poetry is feeling, poetry is accessibility. All over the world, people are waking up to new realities, to how small our control is and to what really matters. So in these tough hours of social distancing, here are poems from Lighthouse with intention to spread some light, positivity and love. ये हिंदुस्तान है और ये सितंबर का महीना है और एक फैसला आपको करना है. ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है. बदसूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने, धुकधुकी है छाती के भीतर. फिक्र है बुजुर्गों की, बच्चों की. दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं. दूर देश में कहीं माओं की रातें करती हैं साएं साएं. कोई घर नहीं आता, दोस्तों को खींच लेने के लिए तरसती है बाजुएं. बूढ़ी दादी कहती है मुल्क को किसी की नजर लग गई है. डर लगता है ना? पर वो बता रहे हैं कि सफ़ेद कोट पहनने वाले कुछ पढ़ाकुओं ने प्रयोगशालाओं में जान दे रखी है. वो बता रहे हैं कि महज कुछ हफ्तों की कठिनाई के बाद कई दिशाओं से आ रही है राहत की.
वो बता रहे हैं कि स्पेन की सलाखें तोड़ बालकनियों से निकला है सनी। उम्मीद के रोशनदान अब भी खुले हैं। कोई मुल्क है दुनिया के कोने में डेनमार्क करके, जहां सरकार ने सेठों से कहा है कि वे नौकरियां ना लें, तनख्वाह हमसे ले लें। मेरे पड़ोस की एक बच्ची ने फोन कर दिया है अपने दोस्त को, कोरोना चला जाएगा फिर खेलेंगे चोर पुलिस का खेल। दिमाग का डॉक्टर मुफ्त में दे रहा है मशवरे कि यहूदियों के तजुर्बे पढ़ो, जहां उम्मीद का एक कर न दे। सारी दुनिया सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल सीख रही है। सारी दुनिया में लोग इस बीमारी से सीख ले रहे हैं। सब यह जान चुके हैं कि ये लड़ाई तोपों और तलवारों से नहीं, धैर्य और प्रेम से जीती जा सकती है। और यह हिंदुस्तान है, इसने क्या कुछ नहीं देखा है। बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक सुनामी पुनामी सब झेली है। बस चाहिए जिगरा और करुणा। और देखना बहुत जल्द होगा जब दफ्तर की सारी थकान हारेगी, जब फिर मिलकर बैठेंगे पुराने दोस्त, जब फिर से आसमान गुलाबी होगा, मंदिरों की घंटियों से, अजान के सुरों से। इन्हीं सड़कों पे लकड़ी की डंडियों से टायर दौड़ाते हुए बच्चे फिर लौटेंगे। कीर्तन को जाती हुई औरतों का शोर लौटेगा। गोलगप्पे वाले को 10 रुपए पकड़ाती हुई लड़कियां और प्लास्टिक के चेहरों से घिरी हुई बुजुर्गों का दल ठहाके लगाते हुए ये सब भी लौटेगा, क्योंकि यही तो है चिन्ह हमारी इन चलती हुई शहरों का। पुरानी किताबों का धूल झाड़िए जरा, अलमारी पर चिपकी बिंदियों का गोंद छुड़ाइए जरा। डर है तो हो पर नफरत ना हो, कैद है तो हो पर अकेलापन ना हो, शक है तो हो पर स्वार्थ ना हो, बीमारी है तो हो पर कोई आत्मा बीमार ना हो। ये हिंदुस्तान है जनाब, अपनी खिड़कियों से निकलिए, चिल्लाइए और चाहे गीत गाकर सुनाइए। किसी का हाथ छूना नहीं पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। What do we mean when we talk about peace? Well, to some people, peace refers to the result of big steps like marching in protest the way Martin Luther did. And we think of peace as such an idea so much, so often, that achieving word peace seems almost impossible to us. But I ask, that does not peace mean when every single body feels loved, feels accepted in their own small communities? I know that this sounds small, but this is where we need to begin. By caring for others, by understanding others, and by selflessly devoting ourselves to others. So, social workers, dear friend. Social workers are the part of the few who really do care. They care about the social injustices going across the globe behind the closed doors to outside in the open. Rising above creed, caste, religion, and discrimination, they devote themselves selflessly to such self-denying tasks. Their kindness and their empathy shows that they care enough to make this place be a better world to live in. And believe me, the hardship that such a job implies is immense. But their determination and their willpower for public alteration and for public happiness is what makes it possible and outstanding. It is a diversified job to make the society a harmonious and peaceful place. There's no doubt that these are the real heroes we need today. These are the people me and you need to grow up like. Because as Dalai Lama said, being compassionate is not always enough. Dear friend, you must act. मानुस हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन।
Sayyid Ibrahim Khan, born in 1548 AD, was a poet of Pashtun origin who became a devotee of Lord Krishna. He lived in Amroha. Raskan was his takhallus in Hindi. He learned Bhakti Marg from Goswami and began living in Vrindavan. He accepted Lord Krishna as the supreme god. His works are one of the finest poetries and dohas in Hindi language. दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए. One of the most beautiful lines said by Sant Kabir Das. He was a 15th century Indian mystic poet and saint. Although born in a Muslim family, his writings influenced Hinduism's Bhakti movement, and his verses are found in Sikhism's scripture called Guru Granth Sahib. The central teachings of Kabir are very simple. He emphasized on bhakti and said that through submitting one's wills towards Almighty, one would come closer to God. ब्राह्मण ना पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण. Ravidas was an Indian mystic poet saint of Bhakti movement during the 15th to 16th century. He was born in 1450 and belonged to the family of leather workers. He believed in the unity and did not believe in duality. His extreme love and devotion for God and universal love induced hundreds of people of caste to join him in worship. Queen of Chittor and her husband became his disciples. Among the most noted disciples were Bhagat Sen, a barber, and Bhagat Dhanna, a cultivator. It is said that Mirabai became his disciple as well. His poetry is brimming with ardent love for God. His devotional verses are famous and they made lasting impact on the Bhakti movement. Alag Natarajan, an engineer, returned to India in 2005 after spending over 32 years in London. He has placed 60 plus matkas in and around South Delhi for thirsty passerbys and the poor. It takes 68-year-old Alag Natarajan an hour and a half to fill the 60 plus matkas he has placed in and around South Delhi so that thirsty passerbys and the poor get easy access to clean drinking water. Dr. Bhakti Yadav was an Indian doctor who was the first female MBBS from Indore, and she was recognized by being awarded one of the India's highest civilian honors, Padma Shri. She had been treating patients free of cost for the past 68 years and has helped deliver thousands of babies. She is an unsung warrior famously known as Dr. Dati. White hair, bespectacled, born in a farmer's family in Yeraduniam village in the West Godavari district. 66-year-old Gangadhar Tilak Katnam is a man on a mission. Since 31st July 2011, the retired senior section engineer of the Southern Railways have been travelling the city and filling every pothole he spots. Tilak has filled a staggering 1,124 potholes so far. It was during his job with the software firm that Tilak's idea for his future initiative called Shramdan, or offering physical help, grew and took root. At each accident, Tilak kept telling the police that the accident could have been avoided if the pothole was fixed, but it wasn't one incident that made him take matters into his own hands. After 1.5 years, it had got to the point that Tilak could not sit at work and used to skip lunch to fill potholes during his lunch break. It is people like Gangadhar Tilak Katnam who should be respected, honored, and should always be held because people like him are the road to betterment. Karimul Haq is a social worker, also known as Bike Ambulance Dada. He has received the Padma Shri Award in year 2017. In 1998, Karimul bought a bike with all his life savings. Past 50 now, he uses the bike as an ambulance to take people in critical condition to hospital. So far, he has saved more than 4,000 people across 20 villages of West Bengal. He was an unhidden hero who have quietly been working for the betterment of society and people. He was such an inspirational for all of us. हकीरों में फकीरों में ज़रा बैठ कर तो तुम देखो, हकीरों में फकीरों में ज़रा बैठ कर तो तुम देखो, पता तुम्हें चल जाएगा आमिल कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता.
Sri Ramakrishna Pandey ji, alias Amil, a great novelist and a short story writer, was born on 26 June 1931. He got his name Amil when he started doing shairis, which he learned from a great shair Salim from Rudauli. Amil wrote several ghazals and books like Dawat-e-Nazar, Akse Ghazal, Jigre Dora and Saanson Ki Sargam. He has also been the writer of several novels like Mantra Chintan and Tantra Parichay. आप तो दिल में मेहमान घुटन रखते हैं, हम हर एक से मोहब्बत का चलन रखते हैं। वज़ादारी बातकल्लुफ़ मेरी खातिर ना हक, हम तो चुल्लू से भी पीने का चलन रखते हैं। गुल से या प्यार से या फिर खार भी मानूस रहे, ऐसे रिश्ते तो वफादारे चमन रखते हैं। आज जो आन पर आ जाए वतन की आए दोस्त, हम जियाले तो तभी सर पे कफन रखते हैं। नाम आया ना मोहब्बत का जुबां पर ऐ आमिल, ऐसे जज्बात तो सीने में दफन रखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित खिड़की अली बेग जनपद अयोध्या के बाशिंदे, साइकिल मिस्त्री मोहम्मद शरीफ साहब, जो शरीफ चाचा के नाम से भी जाने जाते हैं, आज इस साक्षात्कार यानी गुफ्तगू के लिए शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय JB अकेडमी की ओर से मैं लक्ष्य टेकचंदानी अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ शरीफ चाचा के आवास पर मौजूद हूँ। मुफलिसी में अपना जीवन गुजारते हुए भी शरीफ चाचा ने 27 वर्षों से कई लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया। 3,000 हिंदू 2,500 मुसलमान, जिसके लिए उन्हें तमाम पुरस्कारों के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इस साक्षात्कार को और इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो शरीफ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको पद्मश्री पुरस्कार मिलने के साथ साथ आपके साथ साथ हमारे शहर, हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश सब काबिल फ़ख्र महसूस कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल जो हम सभी दर्शकों के मन में आएगा कि आप ये जो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का नेक काम करते आ रहे हैं, आप रोज़ मौत को करीब से देखते हैं, तो ये काम करने का आपको जज्बा कैसे मिला और ये काम करने का ख्याल आपको कब और कैसे आया? बेटा ऐसा है, हमारा एक लड़का 25 साल का था, वो गया था सुल्तानपुर, उसे किसी ने मार के फेंक दिया लाइन के किनारे। फिर हम ढूंढते रहे, 1 महीने के बाद वहाँ सुल्तानपुर की थाना इंचार्ज उसकी बुसट लेके आया, उस पर लिखा था पीरू टेलर शंभू मार्केट फैजाबाद। पीरू टेलर के आया तो हमें बुलाया, तो मेरे लाल के मैंने उस दिन से कसम खा लिया कि मेरे लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब है इंसान। जब से हम 27 बरस से किसी की लाश को अपने ही समझते हैं, ये नहीं समझते कि कौन है, अपना खून है, अपना जिगर है। मैंने घाट भी अलग बना लिया, किसी की लाश को हम फेंकने नहीं देते, चाहे सड़ी हो, चाहे गली हो, चाहे जो है, हम खुद उठा के अपने ले जाते हैं। और सरकार की तरफ से अभी तक मुझको कुछ नहीं मिले, खाली ये है कि मुबारकबाद मिलती रही। मगर आप लोग का बड़ा ध्यान है कि मुसलमान हिंदू मिलकर इतना कर दिया है कि हम कभी लच नहीं खाएंगे। आपके जज्बे का सलाम, आपके जज्बे का सलाम। नहीं जज्बे भैया नहीं, हमने किया है। अभी देखिए किराए के मकान में रहते हैं, 40 बरस के लड़कियों की शादी नहीं कर रहे, मगर हमने कहा ये काम हम करेंगे। इस हालत पे भी हम बराबर कर रहे हैं। 2 नौकर रखे हैं, एक रक्षा वहाँ हमारा अभी हम गए थे थाना इंचार्ज पास, वहाँ का नाम पुल रकाबगंज। हमने कहा बाड़ियों को नहीं अब पंचनामा कर रहे हैं, आज 5-7 दिन हो। अब कायदा गवर्नमेंट का ये है कि 4 दिन तक उसका आसरा देखिए। अब 4 दिन तक न कुछ है उसमें, न कुछ तल के बिल्कुल डबल लोटी हो जाती, डबल लोटी हो जाती। तो जज्बे को क्या करें? तो सवाल इस बात का है भैया, मोहब्बत होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हमें एक है। अब ये कहें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये सिंधी है, ये नहीं, एक मालिक क्या के सब एक पेट से आए, एक हम सब एक हैं, एक खून। अभी हमारा खून और आप डॉक्टर का खून दे दे, बता दे किसका किसका, तो नहीं बताएगी। ये आपका है भैया। मैं अब तक ज़िंदा हूँ, जब तक मैं करता रहूँगा और इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक करेगा। उसके बाद हमारे लड़के कह रहे हैं कि हम करेंगे, अब उस वक्त की बात है। हम इंसानों में धर्म जाति बांटी है और ऐसी सोच वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी ताड़ के तकिए पर मैंने कमरा बनवाया, वहाँ नहलाते हैं, नहला के उसको भेजते हैं। घाट के ऊपर अलग घाट बनवाया, वहाँ ले जाएं।
कहें दूर रखो, सड़ी हुई मट्टी अभी नहीं जलाने देंगे। तो घाट के पिछवाड़े कमरा निर्मल से बनवा के दिया और उसे बगल से जाके वहाँ जला दी जाती है। वहाँ लकड़ी का स्टॉक रहता है। मेरा आपसे ये प्रश्न होगा कि जब आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो आपका अनुभव कैसा था उस समय, कैसा आपको लगा? अनुमान की बात नहीं ना बेटा, अनुमान हमें कोई नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। हमें ये नहीं कि कोई हमें अनुमान कर दे, कुछ कर दे, उससे हमें नहीं मतलब है। देखिए इसे ज़रा देखिए, अब इसी को देख, हमें वो किसी का अनुमान नहीं ना, राष्ट्रपति का चाहे कुछ कर दे, हमें जो काम करना वो हम करें। अब राष्ट्रपति कर दे तो हमारे जा रहे यार हमें क्या, हम ये हो गए क्या दे, क्या ने आज तक दिया गवर्नमेंट ने। म्यूनसिपलिटी ने का सब है, कहीं कुछ 10 पैसा कोई देती, म्यूनसिपलिटी 1500 रुपया देती तो वो भी नहीं जब से वो बनना। भाई आप लोग का खर्चा है बेटा, आप लोग दे रहे हैं, कमी कोई बात की नहीं, काम हो रहा है, काम की कमी ना इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं, जब इस काम को। हाँ अब देखिए कितनी सड़ी मट्टी है हम लेके आ रहे हैं। देखिए ट्रेन से कट गई एकदम, चिथड़ा हो गई। भैया दे दो, वहीं ले निकाल के ले लेंगे, ये लो वहीं रख के ले लेंगे। ठीक है, वहीं रख के ले लेंगे। इकट्ठा दे, इकट्ठा। जैसे आपने ये सारी तस्वीरें हम लोगों को दिखाई, तो जैसे सभी को मौत से एक भय होता है, एक डर होता है, आपका हर रोज़ एक सामना होता है इन लाशों से, तो आपको ये जज्बा हिम्मत कहाँ से मिलती है? जज्बा वो हमें लड़के का लिया, वो मालिक का सहारा है। मालिक ने उसको रेड किया, मालिक ने रेड किया। 2-2 बजे रात को पुलिस आती है, कहीं गाड़ी दब जाती है, कोई अब जाती है, देखो लात के लाते। ये हम ये नहीं कहते कि हम नहीं जाएंगे। कल भी अभी परसों 2 बजे रात को कल दब गई थी लाशें, तो गए थे, पैक करके भेज दिया। ये इस मालिक का कर्म है कि हमें साफ को हुआ। जैसे साधु संत होते हैं, उस मालिक का कर्म हो जाता है उनके ऊपर, ऐसे उस मालिक का कर्म होता है। चाहे जैसे सड़ी लाश हो, इस लाश को कोई इस लाश को देख पाइएगा? ये देखिए गठरी में बांध के लेके आ रहे हैं, देखिए बटोर। तो मेरा आपसे अगला ये प्रश्न होगा कि जब आपके बेटे के साथ ये हादसा नहीं हुआ था, जब पुराने दिनों की अगर हम लोग बात करें, जब भी आपके साथ हादसा नहीं हुआ था, जब आपका पूरा परिवार था, तो उन दिनों की बात यदि आप हमें, हमारे दर्शकों को कुछ बता जैसे जब हमारा बच्चा था तो जाता था, सुबह शाम को आता था, खुशी खुशी मिलता जुलता था। और सुबह गया, शाम को गया, जाए साइकिल लिखाया तो कहते अब्बू हम जा रहे हैं, शाम को आएंगे, साथ में बैठ के साथ में खाते थे, खुशी रहती थी, वो रहता था। उसके बाद जब नहीं आया तो हमने कहा होएगा, फिर ढूंढते रहे, फिर देखा साइकिल वहाँ खड़ी है स्टेशन के ऊपर, फिर पता किया, नहीं पता चलता रहा। फिर पीरू टेलर शंभू मार्केट का एक बिल्ला लगा था उसका, तो वो 1 महीने के बाद पुलिस थाना इंचार्ज वहाँ लेके आया, तो दिखाया उसने, तो उस पर लिखा था पीरू टेलर शंभू मार्केट। तो हम गए, तो हमारे लड़के की थी, तो फिर कपड़ा वहाँ कपड़ा तो रखा था, तो देखा सब हमारे लड़के का था, तो उसे मार के लपेट के वहाँ फेंक दिया। अब कैसे फेंका, क्या हुआ, ये अल्लाह जाने। अगर आप इस नेक काम की बात करें तो एक प्रश्न हम सभी के मन में आता है कि आपकी इस नेक मुहिम में मीडिया और प्रशासन का कितना सहयोग रहा? क्या कहना है? मीडिया और जैसे जो समाचार वाले हैं, या आपके कोई संस्था में, आपको किसी संस्था ने यदि आपकी सहायता की कि नहीं? नहीं, कोई सहायता नहीं की। म्यूनसिपलिटी से 1500 रुपया मिलता था, वो भी नहीं मिला। कोई
शासन ने या कोई आप लोग ने या किसी ने कोई आज तक सहायता नहीं की, पब्लिक ने दी है। पब्लिक ने अभी हम कह दें तो फ़ौरन हाजिर होते हैं। पहले तो कुछ नहीं देते थे, पहले हमें पागल है ले जा रहे, तब देखें कि हाँ ले जा रहा, तो अब जितना मांगे उतना फ़ौरन दे देते। तो ऐसे आपको जो कहते थे पागल है या आपको जो ऐसी टिप्पणियाँ मिलती थी, तो ऐसे आप ऐसी सोच का आपने सामना कैसे किया? कुछ नहीं, हम अपने मुंह में कपड़ा बांधे अपना लिए चले जाते, जो भी कहो। सिर्फ आप अकेले खड़े थे अकेले सब के सामने? हाँ। तो आपने सामना कैसे किया? उसका सामना कैसे किया आपने, लोगों की उस टिप्पणी को, लोगों की उस बात को? कुछ नहीं, सामने देखा, पता चला यह है हिंदू, मालूम हो जाता लावारिस, पुलिस पहुंची, हमने उठाया, बटोरा, कपड़ा अभी भी रखा है हमारे पास, पन्नी कपड़ा घर पे रखते हैं, और एक कपड़ा पन्नी लेता था। तो उसके बाद उसे लपेट के उठाया गोदी में, साइकिल पे लादा ले जाते थे। अब धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आ गया कि हाँ है, फिर रक्षा दिला दिया, रक्षे पे ले जाते हैं। अब नहीं चल पाते तो एक नौकर रखा, बाद में वहाँ संतोष से जलाने के घंटों खड़े रहते थे। तो एक दिन निर्मल गए थे अपनी अम्मा को लेके, तो हमने कहा भैया एक तो घाट बनवा दो, हम यहाँ खड़े रहते 4-5 घाट, तो उन्होंने तड़ से अलग बनवा दिया, और वहाँ ट्रक लगती रहती है, वहाँ से वो जला देते। और अगर आप समाज को बताना चाहें कि पद्मश्री पुरस्कार मिलते वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने आपसे कुछ कहा आपके इस काम को लेकर? अभी प्रधानमंत्री अवार्ड तो नहीं दिया, खाली पेपर में आया। अभी क्या कहते हैं, अभी हम कहते हैं ये हो गया, जब तक के कोई रिकॉर्ड ना है तो हम क्या कह रहे हैं। अभी तो कहने को बड़े बड़े लोग कह देते हैं, अरे अभी हमारा 2500 रुपया बेकार हुआ, 2500 का टिकट ले लिया मैडम, 2500 का टिकट ले लिया, आइए, अब गाड़ी में बैठे कहना अभी ना आइए, बताइए 2500 हमारा कट गया, ये कौन देगा? कोई से हमें फायदा नहीं, हमें ये बस हमारा मालिक खुश होए, आप लोग खुश हो। ये पैसे कौड़ी कुछ नहीं, पैसा तो अब चाहते थे, धंधे पे लाख करोड़ों रुपया किराए के मकान में न रहते, जिस गली चले जाते दे देता। बम्बई बुलाए गए 2 बार, आमिर खान ने आए, सब फ़ोटो वोटो खींच के ले गए, उन्हीं ने बुलाया, मगर आमिर खान से हमने नहीं कहा हमको 10 पैसा दो। आमिर खान ने 1100 रुपया दिया, तो उनसे लिख के ले लिया, हमें 1100 दिया, लिख के दीजिए, तो लिख के ले लिया। और उन्होंने लोग अरे मैं आमिर खान कह रहे यार गान लाए। बहुत बड़ी बात है आपकी सादगी के लिए। कहते हैं ना कि सभी समस्याओं का समाधान ही सादगी होती है। हम कभी नहीं, अभी हम आधी रात को सुनते हैं कोई हमारे मोहल्ले में है, फ़ौरन उसको ये नहीं समझते ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं। तकिए पे कोई मुसलमान मर जाए तो उसका भी पूरा खर्चा हम देते हैं, हिंदू मर जाए तो ठेले पर लाद के उसे वहाँ जलने का खून कर देते हैं। गरीब आदमी कहाँ से देगा? बहुत हमारे दिल में खून एक है, मोहब्बत एक, हम किसी के सावधान पे नहीं, हम एक हैं, सबका साधन एक है। हम किसी ने ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, कोई सब हमें गले लगाते, सब हमें गले लगाते। अभी कहीं वो कीर्तन होता है तो हम इसे दिया जलाते हैं, बाबा जलवाओ, हम जला देते हैं। जो दिया के इतने बड़े महान जी हैं वो भी मानते हैं। बहुत दुखद विषय है कि आपने अपने बेटे को मिट्टी नहीं दे पाए, लेकिन अगर आप हमें बताना चाहें कि आपने कितनी लावारिस लाशों को मिट्टी दिया या उनका अंतिम संस्कार किया? जी, कितनी लावारिस लाशों को आपने? इस वक्त 3000 हिंदू भाइयों को किया है और 2000 मुसलमानों का कंप्लीट का रिकॉर्ड है, और उसे गले लगा के, और ये नहीं अभी भी है कि हम फेंकेंगे नहीं। अभी थाने पे गए थे दोपहर में, हमने कहा 2 रोज 5 रोज से लात पड़ी, क्यों नहीं पंचनामा करते? तो कहे बाबा आप ये फ़ोन करके बताएंगे। अभी 10 मिनट इसके साथ गए थे थाने इंचार्ज को, डाटा नहीं आया आज। हमने कहा 4-5 रोज से लात पड़ी, उसको क्यों नहीं आप पंचनामा करते? अब गवर्नमेंट ने आर्डर दे दिया 5 रोज तक आसरा देगा, 5 रोज के साथ उसके लिए रखने का भी तो कोई साधन हो कि फूल के गद्दा हो जाती, ये हो जाती हो, फेंक दिया, 2 साल फेंक देती है पुलिस वाले, जाओ उठाओ। और ये जो हम नहीं ना तो साले रखे वाला पकड़ा के, अरे फेंक के नहीं जाती। जैसे कि हमारे दर्शकों ने यह जाना कि आपको किसी ने सरकार द्वारा इतनी सहायता नहीं की गई, किसी ने नहीं किया,
आपने खुद इतने अपने ही दम पे इतने लावारिस का एक वारिस बन के आप सामने आए। हमारे दर्शकों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कि उनको क्या करनी चाहिए? हम ये चाहते हैं माँ बाप की खिदमत करो, उस मालिक पे सहारा रहो, अपने जांगर के ऊपर चलो। सबसे बड़ी है माँ। आपने माँ की सेवा नहीं की, दारू पी के उसे मारा, दारू पी के उसे गाली दिया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप उसकी कदर करो, पैर छू के लिख लो, पैर छुओ जाके, इज्जत करो करो। अब लोग आए चले टोक दियो ना, मैं बताई थे ये बात है, बताया था टोक दो भैया कहाँ जाओ, तो मैं बताई थे। पहले मुसलमान चलते थे, अम्मा हम जा रहे हैं खुदा हाफिज़, हिंदू चलते थे तो 4 बार पैर छू के चलते थे। अब कुछ तो टोक दियो ना, बताई था मैं। हमारे ज़्यादातर दर्शक युवा ही हैं, जो ज़रूरी है पर आपके प्रति आपसे जो परोपकार का भाव हमें सीखने को मिला है, अवश्य उससे प्रेरित होंगे हमारे युवा। ठीक, हमारे युवा को आप आज क्या संदेश नौजवान लड़कों को, स्कूल के बच्चों को कुछ कहना? मैं शुभकामना यही करता हूँ, मालिक आपको और अकल दे, जमत दे और माता पिता की सेवा करने दे। सबसे बड़ी इबादत यही है, आप लोग करेंगे और तरक्की पाते रहेंगे। तो आप लोग मेरे पास आए, मुझे हौसला अफजाई हुई कि आप लोग ने मेरा बयान लिया। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से शरीफ चाचा को हमने निश्चित रूप से बहुत करीब से जाना होगा, समझा होगा और महसूस किया होगा कि जितनी भी लावारिस लाशों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उसमें उन्होंने अपने बेटे का स्वरूप देखा। मैं ईश्वर से, खुदा से यह प्रार्थना करता हूं कि उनके बेटे को की आत्मा को शांति प्रदान करे, और शरीफ चाचा की ओर से इस साक्षात्कार के माध्यम से उनको पद्मश्री सम्मान तक पहुंचाने के लिए मीडिया ने जो फ़र्ज़ निभाया है, और हमारे प्रशासन ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत, हमारी जनता ने जो कुछ भी थोड़ा बहुत इनका सहयोग दिया है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी निश्चित रूप से परोपकार के प्रति अवश्य ही प्रेरित होगी। तो शरीफ साहब, इस साक्षात्कार के लिए JB अकेडमी के परिवार की ओर से, हम शिक्षकों की ओर से, हम बच्चों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मालिक आप लोग को खुश रखे और माता पिता खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और सही रास्ते पर चलें, गरीब गुरबा की जान दें, कोई किसी गरीब को सताए ना, मारे ना, पीटे ना, और सही इंसाफ से काम करें, ईमानदारी से काम करें, झूठ बोल के काम ना करें, उल्टा सीधा लिख दो। ईमानदारी से काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमेशा तरक्की करेंगे। On behalf of the JVA family, I, Akarsh Tiwari, a student of class 11th, take this opportunity to extend my heartfelt gratitude towards Sharif Chacha for sparing his valuable time and enlightening us with the words of wisdom, men who set an honest example of humility and hard work dedicated selflessly towards society. On this Peace Day, we, the future generation, pledge to follow the footsteps of noble people like Sharif Chacha to make the world a better place. You will find peace not by trying to escape your problems, but by discouraging them courageously. You will find peace not in denial, but in victory. Peace is not the absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful manner. Peace cannot be kept by force, but it can only be achieved by understanding. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. It would be the best day of my life when I will turn the TV on and see there is finally peace on earth. Peace begins in your heart, grows in your mind, manifests through your will, and spreads through your action. And the power of love wins over the love of power. Peace reigns the world. It is not enough to talk about peace. One must believe in it. And it is not enough to believe in it. One must work at it.